السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم لگاتار آپ سے درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 109 ہے. کل ایک حدیث بڑی جامع طور پہ گزری تھی، اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا ایک دن، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں چند باتیں سکھلاتا ہوں. تو اس میں سے آپ نے پہلی بات بتائی کہ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. کل میں نے اس پر جو اللہ نے توفیق دی بات کی. پھر آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے کل رکھی. اس کے بعد جو تیسری اور اہم چیز ہے، اذا سألت فسل اللہ، کہا ابن عباس سے کہ جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. دیکھیں، غور سے سنیے گا، میری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، کیونکہ بچپن سے جو چیزیں ہمارے گھروں میں ہم کو بتائی گئی ہیں، اگر اس کے خلاف کوئی بھی عالم بات کرتا ہے تو وہ بات اچھی لگتی نہیں ہے. لیکن یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے کفار قریش کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے ایسے ہی سنا ہے. چائلڈہڈ سے، بچپن سے جو باتیں وہ سنتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے خلاف توحید کی بات کی تو ان کو اچھی نہیں لگی. آپ کو تو صرف اچھی نہیں لگے گی، آپ مجھے ماریں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں، کوئی مہم نہیں چلائیں گے. انہوں نے تو سب کچھ چلایا، حتیٰ کہ کئی مرتبہ قتل کی کوشش کی. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ توحید سب کو اچھی لگتی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. قرآن کی ایک آیت ہے، ترجمہ پیش کر رہا، مجھے آیت نہیں یاد ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میری صرف بات کی جاتی ہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، توحید کی بات کی جاتی ہے، تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے. اور جب اس کے ساتھ مرچ مسالہ کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اللہ ہے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کر دیتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو لوگوں کو خوب اچھا لگتا ہے. اللہ کہتا ہے جب میری بات آتی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے. تو اگر اچھا نہیں لگ رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ گڑبڑی کہیں ہو رہی ہے. جب صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی توحید کا ذکر ہو، جتنا آپ کو اچھا لگے اتنا آپ کا ایمان تگڑا ہے. اور جتنے آپ کے پاس سوال یا کوشچن دل میں اٹھے اتنا آپ کو اس کو ایک ایک کو کلیئر کرنا ہے. ویسے ورنہ ایسے ہی مر جائیں گے اور یہ روزہ نماز ایک بھی کام نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر عمل سے پہلے اصل چیز کیا ہے؟ توحید ہے، جس کو 13 سال لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کیا. ٹوٹل آپ کی لائف ہی 23 ایئرس ہے نبوت کے بعد کی. اس 23 سال میں اتنا بڑا کام کر رہا ہے، اس کے باوجود 13 سال لگاتار ایک ٹاپک پر بات ہوتی رہی، اور وہ صرف توحید تھی. کہ لوگوں کو توحید کی بات معلوم ہونا چاہیے، اور کہاں کہاں سے شرک کے لیکیج ہے. جو بڑا سے بڑا کیمیکل ہو سکتا تھا وہ لگا کر کے اس لیکیج کو اللہ کے رسول نے بند کیا، اور ایک ٹیم تیار کی جو صرف اللہ پر ایمان رکھتی تھی، اللہ کو ہی سب کچھ جانتی تھی. لیکن چونکہ یہ خطرناک چیز ہے، آپ کے لیے اور زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بھارت کے مسلمان جس کلچر میں پیدا ہوئے ہیں وہ شرک کا بنا ہوا کلچر ہے. آپ جہاں رہتے ہیں، جہاں اٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، ہر وقت کسی آدمی کو آپ دیکھیں کہ ایک سلوگن بنایا جاتا ہے. کوئی ایک، جیسے مثال کے طور پر KFC ہے،
जैसे ही KFC आपको कही जाती है तो वो आदमी की शक्ल आपके दिमाग में फौरन आ जाती है, एक सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि उसका इतना इश्तिहार कर दिया गया है, इतना इश्तिहार कर दिया गया है कि आप ना चाहते हुए भी वो आपके दिमाग में पिक्चर बैठी हुई है। सही बात है ना? ऐसे ही आप ऑफिस में गए तो वहां दुर्गा पूजा लगी हुई है, आप मोहल्ले में निकले तो पता चला कब्र पे बैठे हुए हैं लोग, तो आपके दिमाग में भी शिर्क क्या है, एकदम छा गया है। इसको खुरचना, इसको निकालना एक बहुत बड़ा काम है। और उसमें से सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जब आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जो अल्लाह के रसूल यहां फरमा रहे हैं कि जब प्रॉब्लम्स होती है तो आप किधर जाते हैं, वही असल आपका ईमान है। प्रॉब्लम के वक्त आप अल्लाह के अलावा किसके पास जाते हैं? जिसके पास भी जाते हैं वो इस हदीस के खिलाफ है। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, प्यार में कहते हैं ये बात, भतीजे है ये, कि वैज़ा सालता, कि जब मांगने का वक्त हो, फस्अलिल्लाह, अल्लाह से मांगो। अब मांगने का हमारे पास दो सिस्टम लोगों ने तहकीक करके बताया। एक मांगना डायरेक्ट होता है, एक मांगना इनडायरेक्ट होता है। मुझे कोई हदीस नहीं याद है, 35 साल हो गए मुझे तकरीर करते हुए। कितने साल हो गए? 35 ईयर्स हो गए इस लाइन में लगे हुए, तकरीर करते हुए स्पेशली। मुझे कोई दुआ ऐसी नहीं याद है और आपको भी नहीं याद है। अभी आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं, सबसे अफजल दुआ नमाज में जो आप मांगते हैं, नमाज में जब अत्तहियात पढ़ लेते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद बहुत सी अलग अलग मसनून दुआएं हैं, क्योंकि नमाज की हालत में पढ़ी जाती है, लिहाजा वो टॉप क्लास की दुआ है। जो भी दुआ आप पढ़ते हो उसमें डायरेक्ट मांगते हैं आप अपने रब से। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाह मैं बड़ा जुल्म किया है मैंने अपने ऊपर, मुझे माफ फरमा दीजिए। उस वक्त आप ये नहीं कहते हैं कि मुझे फलां के वास्ते से माफ फरमा दीजिए। कोई दुआ ऐसी नहीं है। चैलेंज है इस बात का, एक दुआ नहीं है, सैकड़ों और हजारों दुआएं अल्लाह के रसूल ने हमको सिखलाया है। अभी आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं, जिन लोगों ने दुआ पढ़ी है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली, अल्लाह खोल दीजिए मेरे लिए, अबवाब रहमतिका, अपने रहमत के दरवाजे, बिवसीलति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जोड़ा है जुमला अपने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से खोल। कोई दुआ आपको याद नहीं है, मैं चैलेंज करता हूं, आपको कोई दुआ नहीं याद है, और न कोई दुआ मौजूद है, याद कहां से होगी? अब हमारे पास उलमाए देवबंद की बात कर लेता हूं, बरेलवी हजरात तो छोड़िए, उनके पास तो सैकड़ों वसीले हैं। हमारे भी उलमा जब तक ये जुमला नहीं बोल लेते दुआ के आखिर में कि अल्लाह मेरी दुआ को नबी के वसीले से कबूल कर ले, तब तक उनको भी चैन नहीं आती है। कोई भी मौलवी, मैं तो नहीं देखता हूं, जुमा के खतीब से लेकर के और बड़े बड़े इज्तिमात के मौलवी सब लोग बोलते हैं, जबकि हमारे नजदीक बोलना जायज है, अफजल किसी के नजदीक नहीं है। ये बात नोट कर ले। हमारे नजदीक, हमारे उलमाए देवबंद के नजदीक भी वसीले से दुआ मांगना अफजल नहीं है, जायज है। मेरा कहना यह है, एक आदमी को मिनरल वाटर अवेलेबल है, उसको क्या जरूरत है कि वो खारा पानी पिए? कोई वजह होनी चाहिए। अगर आप खारा पानी पीते हैं, इसका मतलब आपने मिनरल वाटर पे खारे पानी को ज्यादा अफजल जाना है बात सही नहीं? आप रिफाइंड ऑयल क्यों खाते हैं? अगर देसी घी ओरिजिनल मिलता है एक आदमी को, तो उसको रिफाइंड ऑयल खाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप खा रहे हैं तो दो वजह हो सकती है, या तो आपकी मजबूरी, आपके पास इतने पैसे नहीं है, या आपको शक है कि साहब वो देसी घी ओरिजिनल नहीं होता है, ये कम से कम ओरिजिनल है। दो में से कोई बात है। आपकी आदत बना दी गई है कि बगैर वसी 4 लफ्ज इस्तेमाल करते हैं,
नबी के वसीला, आप तो नबी की बोलते हैं, वो अब्दुल कादिर जिलानी का वसीला भी है, अली का वसीला भी है, शोदाए करबला का वसीला है, शोदाए बदर का वसीला है। इन सब के वसीले से, वास्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वसीले का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तवस्सुत का लफ्ज़ इस्तेमाल, जो भी इस्तेमाल करते हो। और ये भी आपको मजे की बात बता दें, आपको आज तक ये भी नहीं मालूम है कि इस लफ्ज़ के माना में हम कहते क्या है। इसमें हम खुद कहने वाले को, अभी मैं एक से इंटरव्यू लूं कि आप ये जुमला जो बोलते हैं हुजूर के वसीले से दुआ कबूल कर ले, आप इसका माना जानते क्या है? एक अजीब व गरीब चीज है। अल्लाह से मांगा जा रहा है, मांगने वाले को ये नहीं मालूम है कि मैं ऐसे क्यों मांग रहा हूं, तो कैसे दुआ तुम्हारी कबूल होगी? जब आपका दिल ही नहीं लग, आपके दिल को मालूम ही नहीं है कि दुआ कैसे मांगी जा रही है और ये क्यों कहा जा रहा है, इसके माना क्या हो सकते हैं। हमारे नजदीक भी वसीले से दुआ जायज है। वो कौन सा वसीला है ये आपको अता पता ही नहीं है। आपको सिर्फ बता दिया गया है अवाम को, क्योंकि वो मौलवी साहब से रोज सुनते हैं दुआ में। तो सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूं और दलील के साथ बात कर रहा हूं, कुरान में रमजान पे जहां आयतें नाजिल हुई हैं, रमजान में सबसे दुआ ज्यादा कबूल होती है। उसके आखिर रुकू में है कि वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। मोहम्मद आज़म जब आपसे पूछे मेरे बारे में तो उनसे कह दीजिए कि मैं बहुत करीब हूं। ये कहने की क्या जरूरत, मैं बहुत करीब हूं। बताना चाहता है कि मेरे अलावा कौन है जो तुमसे सबसे ज्यादा करीब है, तुम कहां भटक रहे हो। वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। मैं उनकी दुआओं को कबूल करता हूं जब वो मुझसे मांगते हैं। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है। अल्लाह को कहना चाहिए था कि मैं इनकी दुआ कबूल करता हूं जब वसीले से दुआ मांगी जाती है। ये जुमला बोलना चाहिए अल्लाह को। अगर ये इतना बड़ा इशू है कि वसीले से दुआ मांगना है तो अल्लाह ताला को इस आयत में जरूर जिक्र करना चाहिए था। पूरे कुरान करीम में जहां पे दुआ का जिक्र है, अय्यम्मा तदू अबिदुर रहमान करके एक आयत है कि रहमान को पुकारो या अल्लाह को पुकारो, जिसको चाहो तुम पुकारो, जिस नाम से पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को पहुंचता हूं। वहां पर भी अल्लाह ताला ने नहीं कहा है कि आपको वसीले से आना है। वो जितने दलाइल बरेलवी उलमा देते हैं कि आप डायरेक्ट सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, छत पे नहीं जा सकते हैं, तो आप फिसल सकते, सब झूठी बातें हैं। झूठी बात क्या है? अल्लाह जो सबसे करीब है उसको वसीले की जरूरत है नहीं। आप अल्लाह को दूसरे से क्यों कंपेयर करते हैं? वजीर आजम से मिलना है साहब तो प्यून से मिलना पड़ेगा, तो सेक्रेटरी से मिलना पड़ेगा। तो वो सबसे पहली बात, वो वजीर आजम ने ये कानून बनाया क्यों है? क्यों बनाया उसने कानून? ईमानदारी से बताओ कि मुझसे डायरेक्ट आप अप्रोच नहीं कर सकते। वजह क्या है? वजह उसको उसकी वीकनेस है। उसका प्राइम मिनिस्टर का बड़प्पन नहीं है, उसकी वीकनेस है, उसकी कमजोरी। क्या कमजोरी है? कि कहीं आप आकर के उसको शूट न कर जाए। वो अपनी जान बचाने के लिए कानून बनाया है नहीं? ईमानदारी से बताओ अल्लाह को कौन अल्लाह को शूट कर सकता है? सारी दुनिया मिल जाए तो भी अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं, तिनका भी नहीं हटा सकती। तो जिसको कमजोरी थी उसने उस कमजोरी को आपने जो है वो रिवार्ड दे दिया। उसने कमजोरी की वजह से बेचारे ने कहा है कि हम सबसे नहीं मिल सकते। दूसरी वजह, अगर एक साथ भारतवासी पीएम के पास पहुंच जाएं, अभी इतने लोग बैठे हैं, मुख्तसर से लोग बैठे हैं, अगर ये मुझसे एक साथ सवाल तय कर लेंगे मौलाना से, तब एक साथ बोलना है, मैं क्या बोलूंगा? भैया एक एक आदमी बात करो। ये मेरी कमजोरी हुई, ये मेरा बड़प्पन नहीं हुआ कि मैं आई एम वेरी ग्रेट, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, सब एक साथ बोलो। मेरी कमजोरी है। उस कमजोरी को तुमने पीएम की कमजोरी को अल्लाह से उठाकर जोड़ दिया। अल्लाह तो होता ही वही है जो कमजोरी से पाक होता है। बात तो नहीं समझे? तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मांगने का चक्कर चलाया गया है, ये जायज है। और वो भी आपको बता देता हूं आज किस माने में जायज है, वो बता देता हूं। अफजल किसी के नजदीक नहीं है। जितनी दुआएं आपको याद है आज जाकर के एक एक नोट कर लीजिएगा। किसी दुआ के आगे बेवसीलती मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा नहीं है। खाना खाने की दुआ, बात की दुआ,
दूध पीने की दुआ फला, जितनी दुआएं आपको याद है मसनून दुआ की किताब उठा लीजिए और उसमें जाकर के देख लीजिए, कहीं भी किसी के वसीले का जिक्र है, कहीं नहीं है। एक बात आपको ये बताना चाहता हूं, यहां पर भी अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि वैदा सालता, कि ऐ इब्ने अब्बास जब मांगना तो किससे मांगना, कहना चाहिए था फसलिल्लाह बिवसीलति मुहम्मदिन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ मांगना। ये बात इब्ने अब्बास को सिखानी चाहिए थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है ये। आपके नजदीक इशू है, अल्लाह और उसके नजदीक इशू ही नहीं है, और इसी में आप उलझे हुए, पूरी जिंदगी इसी में बर्बाद हो रही मुसलमानों की, कि जो इशू है उसको समझने की कोशिश नहीं है, जो असल बात है वो आपको अता पता ही नहीं है, एक बड़ी तादाद को अता पता ही नहीं है कि असल मसला क्या है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक आदमी टोपी बगैर लगाए नमाज पढ़ता है? हमारी मस्जिदों में हमको सख्त तकलीफ होती है, होती नहीं होती है? वही आदमी 20 साल से आपके यहां बगैर दाढ़ी के नमाज पढ़ता, आपको कभी तकलीफ नहीं हुई है। हालांकि बगैर टोपी के वजू की कोई हदीस नहीं है कि टोपी लगाना कंपलसरी है। जो इश्यू नहीं, ये आपके साथ किया गया है, आपको हैरत होगी, आपको मालूम ही नहीं है, आपको उलझाया गया है, प्लानिंग के साथ उलझाया गया है कि जो इश्यू नहीं है उसमें मुसलमानों को उलझा दिया जाए। कितने हैं मस्जिदों में ला करके आप टोपी रखते हैं, हालांकि जो टोपियां रखी जाती हैं इससे नमाज पढ़ना ही मकरूह, मालूम आपको? ये जो प्लास्टिक की टोपी आप रखते हैं, इस पर फतवा है बाकायदा। आप प्लास्टिक की टोपी लगा के ऑफिसर के सामने जाएंगे? मैं आपसे पूछता हूं, ऑफिसर इतना ज्यादा अहम है कि आप उसके सामने जो है प्लास्टिक की टोपी ना, और अल्लाह इतना कमतर है कि प्लास्टिक की टोपी लगाकर उसके सामने आ जाए? कौन सी मनती के खोपड़ी लगा रखी है, और सवाब का काम समझते हैं टोपी ला करके मस्जिद में रखना। ये सब आपको फंसा दिया गया है, ओरिजिनल इश्यू आपको मालूम ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, आपने कभी बगैर दाढ़ी वाले से कहा है कि यार दाढ़ी रख लो, छोटी ही रख लो? कभी कहा आपने? टोपी वाले को टोकने के लिए तैयार है, अगर कोई बच्चा आ गया, नौजवान आ गया, और अगर बस चलता है तो वहां से टोपी उठाते ला करके उसके सर पे डाल देते। मैंने भी देखा। तो पता क्या चला, आप इशू पर आपको मालूम ही नहीं है। हमारे मुसलमानों को इशू क्या है, यू डोंट नो, आपको मालूम ही नहीं, अता पता ही नहीं है। क्योंकि इतनी प्लानिंग, जिस दिन से नबी के सल्लम इस जमीन पर पैदा हुए और उसके बाद नबूवत, उस दिन से यहूदियों ने प्लानिंग रची है, आज से नहीं है, कि इनको हम हमेशा गैर इशू में उलझाए रखेंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बताता है, जैसे हमारे मदरसे चलते दारुल ना, कसम खुदा की खा के कहता हूं कि ऐसे 20 मदरसे यूरोप में यहूदी और नसरानी चलाते हैं, जिसमें पढ़ने वाला एक भी मुसलमान नहीं है। पूरा कल्चर उनका, मदरसे का ढांचा है, बिल्डिंग का नक्शा तक मदरसे की तरह होता है, पढ़ाने वाले इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे रहते हैं, एक पढ़ने वाला भी मुसलमान उसके अंदर नहीं होता है। वहां से पैदा किए जाते हैं, और फिर आपको ऐसे इशू में आप बहुत सी मस्जिदों में इमाम गुजर गए जो नसरानी था, और पूरी जिंदगी इमामत किया, और पीछे वालों को पता ही नहीं चला कि ये नसरानी था। अजहर यूनिवर्सिटी में, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, अजहर यूनिवर्सिटी में दीनियात के पढ़ाने वाले यहूदी और नसरानी गुजर गए, और मुसलमानों को खबर भी नहीं हुई। लिहाजा समझने की कोशिश करें, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभालें। सही बात कुरान हदीस की जब आ जाए, सरेंडर हो जाए, छोड़ दें अम्मा ने क्या कहा, अब्बा ने क्या कहा। यही बात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कही गई कि इन्ना वजदना अलैहि आबाना, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने बाबा दादा को कर कैसे पाया है। आप भी यही बोल रहे हैं, क्या फर्क हुआ आप पे और कुफ्फारे कुरैश के जुमले में? आप भी यही जुमला बोल रहे, वो भी यही जुमला बोल। तुम नए नए आए हो मोहम्मद साहब, तुम नए नए आदमी हो, क्या बातें करते हो? हमारे बाप दादा क्या बेवकूफ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं कहा बेवकूफ है। उन्होंने जरूर ये कहा कि तुम्हारे बाप दादा जो कुछ भी करते थे बेदलील करते थे, कोई दलील मौजूद नहीं है। मैं तुमको दलील से गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं तुमको लॉजिक समझा रहा हूं कि तौहीद के एक एक लॉजिक भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के बारे में, क्यों अल्लाह के रसूल को ये बात अच्छी तरीके से अल्लाह ने बता दी थी कि मोहम्मद आज़म जब तक इस मामले में पक्के नहीं होंगे
कुछ भी काम तुम्हारा नहीं, और आज का भी आपका भी जो काम नहीं हो रहा है ना, उसकी असल वजह यही है कि तौहीद हमारे अंदर है नहीं। और अगर है तौहीद तो शिर्क के साथ, मिलावट के साथ है, और मिक्सर अल्लाह को पसंद नहीं है। वो कहता है कि जिसके लिए तुमने शिर्क किया है, ये हमारा वाला भी ले जाकर शेयर उसी को दे दो और वहीं से मामला अपना हल कर लो। मैं मिक्स को नहीं पसंद करता हूं, मुझे तो प्योर चाहिए। मुखलिसन खालिसन ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, खालिस चाहिए, 24 कैरेट चाहिए, जर्रा बराबर भी मिलावट नहीं चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगे, डायरेक्ट मांगे, आपको बता रहा हूं। और अगर वसीला कह दिया आपने कभी बाई चांस, अब तो बाई चांस नहीं कहते, आप तो बगैर वसीले के मांगते ही नहीं है। इमाम साहब भी नहीं मांगते हैं ना आप मांगते हैं, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। जब हम जैसे लोग यहां पर बैठ करके ये जुमला बोलते रहेंगे, हमेशा नमाज पढ़ाएंगे, दुआ में आखिर में अल्लाह हमारी दुआओं को नबी के वसीले से कबूल कर ले। उसने आज तक ये बताया आपको इसका माना क्या है? और आपने कभी उससे पूछा कि मौलाना साहब ये वसीले की जरूरत क्यों पेश आई है? जब आपने नहीं पूछा तो उसको क्या जरूरत बताने की? कुआं जाता है, कुआं नहीं जाता है प्यासे के पास, प्यासा आता है किसके पास? कुएं के पास। आपने पूछा ही नहीं कभी, उसने बताया भी नहीं आपको। आज आपको बता दे रहा हूं, इसके पहले भी बता चुका हूं, मैं मुस्तकिल बोलता हूं। ये भी तकरीरें जाती हैं, अभी जाएंगी ना, 50 लोग ग्रुप छोड़ देंगे, 50 लोग ग्रुप छोड़ेंगे, और उन्हीं का ग्रुप छोड़ना मुझे हौसला मिलता है कि मैंने वो बात कही है जो हमारे अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, तभी इनको ये नापसंद लगी है। और अगर सब मौलाना को अच्छा बोले तो समझो मौलाना गलत है, नोट कर ले ये बात भी। आलिम की बात को 100% लोग अच्छा नहीं बोलना चाहिए, जरूर मुखालफत होनी चाहिए, तभी आपकी हक्कानियत है। और अगर सब आपकी तारीफ करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने कभी हक बात कही नहीं, जिस कभी, क्योंकि हक बोलोगे तो कड़वा लगेगा, जब कड़वा लगेगा तो टूटेगा आदमी। सबको गाय दूध देती है, बैल देता होगा। ये पॉलिसी अगर आपने जिंदगी में अख्तियार की है तो कोई भी आपकी मुखालफत नहीं करेगा। जिन लोगों को बीमारी होती है, वो होम्योपैथिक वाला डॉक्टर क्या बोलता है कि भाई खा लो, नहीं फायदा करेगी, इसका रिएक्शन नहीं होगा। हर आदमी होम्योपैथिक खाने के लिए तैयार है। एलोपैथिक के लिए कभी जो पढ़े लिखे वो नेट पे जाके देखते हैं इसके क्या क्या रिएक्शंस हैं, सारी चीजें। लेकिन क्योंकि होम्योपैथिक एक मीठी गोली है, ज्यादा बड़े आराम से हर आदमी खाने के लिए तैयार है। तौहीद एलोपैथिक है, और वो भी खुला हुआ कैप्सूल, प्लास्टिक निकाल दो और फिर उस दवा के खा के देखो एलोपैथिक, आपको नानी याद आ जाएगी कि कितना कड़वा है। तो ये एलोपैथिक है, ये होम्योपैथिक नहीं है। होम्योपैथिक खाने में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब मस्त है, खा लेते हैं, आराम से खा लेते हैं, कोई मुंह नहीं बनाता है। लेकिन एलोपैथिक खाने में हर दवा में मुंह बनाता है आदमी। लिहाजा कोशिश करे कि डायरेक्ट आखिरी बात कहकर अपनी बात, वो जो कहते हैं कि हम वसीले से दुआ, पहली बात तो ये बता रहा हूं आपको, जायज है, अफजल नहीं है। कोई भी आयत, कोई भी कुरान की दुआएं जितनी हैं सब आप एक मरतबा देख लें, कहीं भी वसीले का लफ्ज़ आया नहीं है। अगर आप कहते हैं तो ये समझ कर कहें कि ए अल्लाह, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं और आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। ये जो मेरी मोहब्बत है, इस मोहब्बत के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले। इसमें पर्सनालिटी, इसमें पर्सन, ज़ाते मोहम्मद वसीला नहीं है, बल्कि अमले मोहब्बत वसीला है। बात मेरी समझे? मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह ये मेरी जो मोहब्बत है, जो मेरा अमल है, ये आपका अमल वसीला बन रहा है, लिहाजा ये सबके नजदीक जायज है, किसी के नजदीक नाजायज नहीं है। और इसको कह करके आप जब कहें तो हमेशा यही नियत रखें। बकिया कोई मौलवी आपको कितना भी समझाए जायज है, फलां है, एहतियात इसमें है जो मैंने आपको बताया, कि आप हमेशा यही बात नोट कर लें कि अगर मैंने बात, पहली बात तो कहने की जरूरत नहीं है, नंबर 1, अगर कहा जा रहा है तो ये नियत से कहा जाए कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह आपके लिए महबूब है, उस अमल मोहब्बत के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले। अगर ऐसा कोई कहता है तो कहना जायज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
یہ باتیں آپ کو کہنا چاہتے تھے. بہرحال چونکہ ان ٹاپک پر ہم بہت بولتے رہتے ہیں، لہٰذا مجھے بہت سخت الجھن ہوتی ہے جب ایسے ٹاپکس آتے ہیں اور عوام کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال ہمارے اندر سے جو کیفیت ہماری ہوتی ہے اس کیفیت کا ہم اظہار کرتے ہیں. کسی کو اچھا لگے یہ بھی بتا دیں. میں کبھی یہ نہیں بولتا آپ کو اچھا نہیں لگا میں معذرت چاہتا ہوں. میں معذرت کچھ بھی نہیں چاہتا ہوں، کوئی معذرت نہیں ہے. اللہ رسول کی بات کہنے میں معذرت کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کو ذاتی طور پہ کوئی تکلیف پہنچائیں، آپ کا پلاٹ چھین لیں، آپ کا پیسہ چھین لیں، ہم معذرت کریں گے، معافی مانگیں گے. اللہ رسول کی بات کہنے میں کیا معذرت کرنا بھائی؟ ٹھیک ہے، اچھی لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی نہیں، اچھی لگ رہی نہیں، اچھی لگ رہی ہے، اور سب کو اچھی لگنی بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.